अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, इज़राइल हमास की वार को 2 हफ्ते हो चुके हैं और अभी सही मानों में वार शुरू नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल एक खुशखबरी है मुसलमानों के लिए कि जिहाद मारा गया। हमास का सीनियर कमांडर जिहाद हुसैन हमले में मारा गया। अजीज़ दोस्तों, जंग की सूरत हाल ये है कि जंग पे जाने से पहले एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करूं कि 7 अक्टूबर को जब हमास के टेररिस्ट इज़राइल में घुसे थे और उन्होंने आम आदमियों का कत्लेआम किया म्यूज़िक कंसर्ट पे, वो इज़राइल के यहूदियों का एक नेशनल डे था यम कपूर के हवाले से, तो उस दिन जश्न मना रहे थे, तो उसमें इन्होंने ये किया। उसके पीछे कहानी ये है कि गज़ा से रोज़ हज़ारों लोग काम के लिए इज़राइल जाते हैं, तो जो चौकी बनी है उसमें से गुज़र के ये इज़राइल में काम करने जाते हैं। इसमें इज़राइल के लोगों यहूदियों के घरों में काम करने वाली जैसे बाई होती है, डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, वो काम ज़्यादातर गज़ा के लोग जाके करते थे, तो फैक्ट्रियों में जाते थे। उन्होंने असल में हमास की मुखबरी की है। ये देखें, आप कहते हैं ना कि गज़ा ओपन जेल है और ये वो है, ज़रा सुनिए तो। Okay, so I'm online and I'm seeing people react, okay? And I don't blame these people for saying free Palestine or for thinking that what they're doing is in the name of human rights. I get it. For years, there has been a targeted campaign to brainwash you to think that Palestinians live in an open-air prison in Gaza, that there's an apartheid. This is not true. Have you ever been to Israel? Like, do you even know what you're talking about? There is no open-air prison in Gaza, okay? The very same border crossing called the Erez border crossing, which the Palestinians used to infiltrate Israel and massacre 900 people and counting. That very same border crossing exists because that's where hundreds of thousands of Palestinians leave Gaza every single day to work, and where food, supplies, and all civilian necessities are brought in every day. Things are imported into Gaza every day. That's why there is this border crossing. Do you know which border is actually not open? It's the Egyptian border. Have you ever asked yourself, why does Egypt not allow the Palestinians to come in and out? Like, why? Have you ever asked yourself, why? Despite what you've been told, it's the Israelis who have been looking out for the Palestinian civilians. It's the Israelis who have been supplying water, electricity, gas. Did you know that up until 2005, there were Israeli settlements, cities and towns inside Gaza? And in 2005, the Israelis unilaterally, meaning without a peace agreement, left Gaza, disengaged. Why, do you ask? Why would Israel do this? Israel did this because they wanted to show a gesture for peace, to allow the Palestinians to govern themselves and thrive. And you know what happened in return? The Hamas government, instead of taking money that came through agreements from Qatar, from Iran, and from, yes, you, people donating to Palestinian causes in Europe and North America, they took that money and they funded weapons. They didn't fund infrastructure, schools. No, you know what? They built schools so that they could put their weapons in them. They built mosques so they could use them to shoot rockets from those mosques. So since 2005, Gaza has not been occupied by Israel. So anyone who makes that claim is lying. And instead of receiving peace, we received so much terrorism, rockets and paragliders and massacres and rape and kidnapping. And for all those crying apartheid, there is no apartheid in Israel. Israel is made up of 25% Israeli Arabs who have complete equality under the law in Israel. And many of them even serve in the IDF. The Palestinians that you claim have no rights under Israeli law are not Israeli citizens. It's like saying to somebody in America, you need to give civil rights to somebody from France. That makes no sense. So anybody who's saying this really shows that they know nothing about the situation. So again, when you scream free Palestine, I get why you're saying it, because you've been fed lies. World, wake up.
read history, come to Israel, see for yourself. We are dealing with अजीज terrorism. दोस्तों, फिर कहते हैं फलस्तीनी हमास के साथ नहीं है। ये सब मिले हुए हैं और एहसान फरामोश हैं। इनको इजराइल में अब कैसे काम मिलेगा ये मुझे बताएं। अव्वल तो अब गजा का वो हाल रहेगा ही नहीं जो पहले था, लेकिन अब तो इनके पास कामकाज तो जो थोड़ा बहुत था वो इजराइल में ही था। गजा में क्या है सिवाय टेररिज्म का? गजा कुछ बनाता ही नहीं है जैसे पाकिस्तान है। तो अब आप बताएं, कहते हैं कि ओपन प्रिजन है। किस किस्म की ओपन प्रिजन थी कि वहाँ पे कह रहे हैं कि पानी ख़त्म हो गया है, खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया है, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, रॉकेट ख़त्म नहीं हो रहे भाई। रॉकेट तो चले जा रहे हैं मुसलसल। तो ये सब मिले हुए हैं घर घर में। अभी इजराइल ने एक मस्जिद पे हमला किया, शोर मचा, पूरे मुसलमान शुरू हो गए। अबे इजराइल ने कहा मस्जिद के नीचे तय खाने में टनलों के ज़रिए वहाँ पे सारे टेररिस्ट जमा थे, तो अब हम मस्जिद बचाने के लिए टेररिस्टों को छोड़ दें? तो यही इनकी आदत है। ये पत्थर जमा करके मस्जिद अक्सा में बैठे होते थे, बाहर जाते थे, 4 पत्थर मारते थे इजरायलियों को। फिर इजरायली आर्मी घुसती थी मस्जिद में तो इनके ऊपर अंदर पत्थर, हजारों पत्थर जमा करके बैठे होते थे और उन पर पथराव करते थे। तो अजीज दोस्तों, इजराइल ने अभी तक ग्राउंड फोर्सेस को गजा में दाखिल नहीं किया है। इसके पीछे कहानी ये है कि एक तो इजराइल की अपनी जो मुख्तलिफ पार्टियों की अब नेशनल गवर्नमेंट बन चुकी है, उसमें काफ़ी इस सिलसिले में अभी तक फाइनल किसी पॉइंट पे नहीं पहुंचे। दूसरा, अमेरिका मुसलसल इजराइल को ये कह रहा है, मशवरा दे रहा है कि गजा में घुस के तुम एक लंबी जंग का आगाज़ करोगे। और उससे फिर ये है कि क्योंकि एयर स्ट्राइक्स तो चीज़, हवाई जहाज जाता है, ड्रोन जाता है, हमला करके बम गिरा के वापस आ जाता है। फौजें अंदर जाएंगी तो उनको पिच बैटल्स करनी पड़ेंगी। और आफ्टर ऑल सारे फ़लस्तीनी हमास हैं। अब इजराइल ने एयर स्ट्राइक किए हैं वेस्ट बैंक में भी, और वेस्ट बैंक में इनको मुकाबला करना पड़ रहा है। सीरिया में काफ़ी एयरपोर्ट्स वगैरह पे हमला कर रहा है इजराइल, बमबारी कर रहा है। इसकी वजह यह है कि जितना हथियार आ रहा है वो सीरिया और लेबनान के ज़रिए आ रहा है। और लिबनान में भी काफ़ी बमबारी की है, और लिबनान से भी हिजबुल्लाह के रॉकेट रुक नहीं रहे और मुसलसल रॉकेट। अब इनके रॉकेट से कोई फ़ायदा नहीं होता, यानी इनको कोई फ़ायदा नहीं है कि इजराइल उनको इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन फिर भी ये लगे हुए हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू ने संडे को कल ये कहा कि हम लिबनान को भी सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे। और मैं आपको बता दूं कि इतना सा छोटा सा इजराइल 1.5 करोड़ की आबादी वाला, जो दिल्ली मुंबई की आधी आबादी समझ लें, दिल्ली या मुंबई शहर डबल हैं इजराइल की आबादी से, लेकिन उसने इन लोगों का बाजा बजाया हुआ है। 23 अरब कंट्रीज़ हैं, 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तकरीबन 2 बिलियन मुस्लिम्स हैं। एक गजा में बोतल नहीं लेकर जा सकते पानी की बगैर इजराइल की मदद से। अब ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचना शुरू हुई है, इस पे भी काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। एक खबर ये चली है कि चाइना ने अपने 6 शिप मिडल ईस्ट रीजन में भेज दिए हैं, जिसमें 052D डिस्ट्रॉयर्स भी हैं। और ये 6 शिप मिडल ईस्ट के समंदर में भेज दिए हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जिराल्ड फोर्ड ऑलरेडी उधर मौजूद है, दूसरा रास्ते में है। अमेरिका ने नई फ़ौजें भेजने का भी ऐलान किया है। अमेरिका ज़बरदस्त हथियारों की सप्लाई कर रहा है। लेकिन ये चाइना के जो जहाज़ हैं ना, ये खबर तो काफ़ी रिलायबल सोर्सेज से आई थी, लेकिन ये भी कंफर्म हुआ है कि ये जहाज़ ऑलरेडी वहाँ पे मई के महीने से थे, और चाइना वहाँ पे अपने ट्रेड रूट्स को गार्ड करने के लिए उन इंटरनेशनल वाटर्स में, इंटरनेशनल समंदर में अपने जहाज़ रखे हुए थे 6, वही 6 उधर हैं। लेकिन बहरहाल रशिया के एयरक्राफ्ट वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं आसमान में, अमेरिका की फ़ौज, ये सब।
और फिर यूरोप के जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड भी हथियार सप्लाई कर रहे हैं, तो जंग बहुत बड़ी होती नज़र आ रही है। ईरान को बार बार वार्न कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप कि खबरदार है बीच में घुसे, लेकिन इन लोगों को अच्छी तरह पता है कि ईरान है इस जंग में। ये सारा हथियार ईरान की तरफ से ही तो आ रहा है। लेबनान तो भिखारी मुल्क है, था एक ज़माने में, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसको तबाह कर दिया, फ़लस्तीनियों ने तबाह कर दिया। जॉर्डन दे नहीं सकता, मिस्र देगा नहीं। तो ये सारा ईरानी के ज़रिए चाइना और रशिया का, चाइना और नॉर्थ कोरिया का हथियार वाया ईरान पहुंच रहा है, हिजबुल्लाह को भी, हमास को भी। तो ईरान तो है, अब ये वेस्ट को डिसाइड करना है कि कब ईरान के ऊपर आप हमला करेंगे। इजराइल ने तो ज़बरदस्त बमबारी जारी रखी हुई है, वेस्ट बैंक पे भी कर रहा है, सीरिया में भी कर रहा है, लेबनान में भी कर रहा है, और गज़ा पे तो दे मार 4.5 इसने बमबारी जारी रखी हुई है। और इजराइल कह रहा है कि हम तो कंटिन्यू करेंगे। देखें, इजराइल के पास इतनी काबिलियत है कि वो गज़ा के एक एक फ़लस्तीनी को कत्ल कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। जबकि हमास के मैनिफेस्टो में है कि हम एक एक यहूदी को मार देंगे, लेकिन उनकी औकात नहीं है। तो ये फ़र्क है दोनों में। अगर हमास वाला माइंडसेट लेके आ जाए ना इजरायली, तो एक बंदा नहीं बचेगा गज़ा में। इतना इनके पास एम्यूनेशन भी है और फौज इनकी इस काबिल है कि सबको सफाया कर सकती है। लेकिन मसला ये है कि थोड़ा सिविलाइज्ड होना भी मसला होता है। मैं इस किस्म का आदमी हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि टेररिस्टों के साथ यू कैन नॉट बी सिविलाइज्ड, यू कैन नॉट बी सिविलाइज्ड विद टेररिस्ट। और जब साबित हो गया है, इंटरनेशनली हम देख रहे हैं, तो फिर आपको, और देखें ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। एक वहाँ पे आई है कि गज़ा में कुछ शहीद हो गए, 2 दिन बाद इनकी बॉडीज़ में से खुशबू आ रही थी मुश्क की, मुश्क और अंबर की खुशबू आ रही थी उनकी बॉडीज़ में से, क्योंकि वो शहीद है। तो भाई साहब फिर क्यों मुकाबला कर रहे हो, शहीद हो जाओ, इससे अच्छी बात क्या होगी, सीधे जन्नत में जाओगे। 2 दिन बाद बास आती है, सड़ जाती हैं बॉडियाँ, तुम्हारी बॉडियाँ सड़ नहीं रही, शहीद हो रहे हो, तो फिर तो इजराइल तुम्हारा एहसान मानो कि इजराइल तुम्हारा मोहसिन है, और लेट जाओ। इजराइल के बमों क्या जहाँ आ रहे हैं वहीं खड़े हो जाओ, खुशबू आएगी तुम्हारी, मुश्क और अंबर की खुशबू आएगी। लानत है तुम लोगों की शक्ल के ऊपर। अजीज दोस्तों, कायरो में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, समिट कॉन्फ्रेंस। समिट का मतलब होता है, जो भी समिट कॉन्फ्रेंस होती है उसमें हर कंट्री का हेड आएगा, लेकिन इसमें कोई हेड वेड तो इतने नहीं थे। मलेशिया का था प्राइम मिनिस्टर, जॉर्डन पॉर्डन इनके आपस के थे, यूरोप के तरफ से भी गए थे, फ्रांस, जर्मनी वगैरह के। अजीज दोस्तों, उस कॉन्फ्रेंस में इजराइल नहीं गया था, अमेरिका नहीं गया था, इसलिए जाहिर है उसमें कुछ डिसीजन तो हो नहीं सकता था। अच्छे खाने खिलाए इजिप्ट ने इन सबको, थोड़ी देर आपस में गप्पे वप्पे मारे, कॉन्फ्रेंस ख़त्म। इजलास में अरब मुल्कों के सारे लीडर्स ने इजराइल को कहा है कि आप ये बमबारी रोक दें, और इससे सिविलियंस मर रहे हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी ने सबको शुक्रिया अदा किया और कहा कि इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन स्टेट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने कहा कि हम इजराइल की धमकियों में आके अपनी सरजमीन को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे, इजराइल को हम पे कब्ज़ा ख़त्म करना होगा। जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला ने कहा कि अरब दुनिया अपने वेस्टर्न अलायंस के साथ ये पैगाम सुन रही है कि इनके नज़दीक फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी सस्ती है, इजराइलियों की ज़िंदगी महंगी है। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल ने कहा कि हम एक दूसरे की बातें सुनने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं और हमें मिल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर जेम्स क्लेवरली ने भी कहा कि इजराइल के साथ मेरी मुसलसल कांटेक्ट में हैं और मैंने इजराइल को कहा है कि ज़रा
धीरज से काम लेना और इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना, सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर कैथरीन कोलोना ने कहा कि गज़ा में हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड भेज सकें। इसी तरह जर्मनी की भी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि गज़ा की सूरत हाल पे हमें बहुत परेशानी है, लेकिन हमास के ख़िलाफ़ जंग जारी है और ये जंग हमास के ख़िलाफ़ है, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ नहीं। लेकिन आम फ़लस्तीनियों की मौत से हमास को ही फ़ायदा होता है। और हमास का लीडर लेविश लाइफ गुजार रहा है कतर में, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये आप देखें कि 2 अमेरिकन होस्टेजेस को जो छोड़ा उसकी डील कतर में हुई हमास के लीडर से। यानी आप ये देखें कि जो हमला हुआ वो हमास ने किया, तो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसका लीडर टेररिस्ट जो लेविश लाइफ वहां पे गुजार रहा है, तो अमेरिका क्या कर रहा है यार? अजीब सी सिचुएशन है। 100 में से 100 मुस्लिम देश है ना, 100% मुस्लिम देश, वो हमास को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम देश फ़लस्तीनियों को रेफ्यूजी लेने को तैयार नहीं है। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं ज़रा हमास का आपको मोडस ऑपरेंडी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि आप देखें कि कितने गलत किस्म के इनके तरीक़ाकार हैं और ये किस तरह अटैक करते हैं। This is not going to be a video of me crying. Not because I don't want to cry. Because there's some things that needs to be said. I've been talking to a lot of people asking me, what about the Palestinian in the past 70 years? And I'm not going to talk about Hamas using the Palestinian citizen as human shield and launching missiles from within the villages. I'm going to say this. Never, ever, in the past 70 years, have Jews walked into villages and murdered women, families, children. Never in the past 70 years have Jews walked into villages, kidnapped women, and raping them while other cheering in the background until their legs were broken and cannot be closed again. Never in the past 70 years have Jews walked into villages, burning babies and kids while alive. Never in the past 70 years we walked into a party with people celebrating in the name of peace, love, and light, and shot them and executed them like ducks. When you stand with Hamas, you stand with this. This is not a war about a land. This is a war about humanity. Do you stand with raping women? Do you stand with torturing babies? Do you stand with murdering their parents in front of their eyes? Do you stand with burning babies in front of their mothers? Do you stand with this? Because this is what it means when you stand by Hamas. This is not a war about a land. This is a war about humanity. Now you look in the mirror and you tell me, who do you stand with? अजीज दोस्तों, वेस्ट का एक इकोसिस्टम, लेफ्ट कम्युनिस्ट इकोसिस्टम, इंटरनेशनल लेवल पे पूरे चीज़ों को वो करता है। उनकी 2 प्रोडक्ट बड़ी मशहूर हैं, एक मलाला यूसुफजई और एक ग्रेटा थुनबर्ग। ये ग्रेटा थुनबर्ग है,
इसको बहुत छोटी उम्र में, अभी 13-14 साल की थी, उसको इंटरनेशनल एक्टिविस्ट बना दिया, रातों रात इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इस हद तक कि वो भारत के फार्मर्स प्रोटेस्ट पे भी बोल रही थी। वो तो इसने पोल खोल दी थी टूल किट की। हर मामले पे जहाँ भी लेफ्ट का इकोसिस्टम का एजेंडा आता है वहाँ पे ये आ जाती है। अभी आजकल क्या कर रही है कि यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में पहुँच जाती है, कोई ऑयल कंपनी की कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई कुछ है, वहाँ जाके प्रोटेस्ट करती है, 5 मिनट खाली पुलिस आती है, पुलिस इसको उठा के ले जाती है और ये मुस्कुरा रही होती है कि माल बना लिया भाई, ठीक है, मेरी सैलरी पक्की हो गई, मुझे इस काम के जो पैसे मिले थे मिल गए। 5 मिनट में पुलिस उठा के इसको वापस भेज देती है स्वीडन। ये इसका काम है। उसने भी गजा के लिए इसराइल के खिलाफ बयान दे दिया। लेफ्ट इकोसिस्टम का यही है। एक है मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान में झोंपड़ियों में रहने वाले लोग थे, यहाँ महलों में रह रहे हैं, लंदन में चार्टर्ड फ्लाइटों में सफ़र करते हैं, सरकारी प्रोटोकॉल में रहते हैं। इसने अभी ऐलान किया कि मैं $3 लाख फ़लस्तीनियों की मदद के लिए दे रही हूँ। इसराइल को कंडेम भी किया, सब कुछ किया। $3 लाख कहाँ से दे रही है भाई? जिसका पाकिस्तान में झोंपड़ियों में रहने वाले लोग थे ये, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो लॉन्च किया गया, तो गर्ल्स एजुकेशन इन पाकिस्तान इसका मोटो था। कौन सा काम किया है पाकिस्तान में गर्ल्स एजुकेशन के लिए, या तालिबान के अफगानिस्तान के लिए कौन सा काम किया है? माल दबाए जा रहे हैं। और इसका बाप एक शातिर आदमी है, और जिया यूसुफजई, और वो इसको लेके खेलता है पूरा गेम। और वेस्ट ने इस टाइप के इकोसिस्टम, रियाना आपको याद होगी, मिया खलीफा आपको याद होगी, ये कैरेक्टरलेस लड़कियों को इस तरह लाके वो कर देते हैं। और फिर आपको पता है जो हॉलीवुड और ये और वो वहाँ पे जा रही है। अरे भाई, तुम्हारा एनजीओ है, गर्ल्स एजुकेशन है, तुम हॉलीवुड की फिल्मों को, मैं फिल्में बनाऊंगी, मैं पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, बातें देखें। तो जाहिर है फिर आप इंटरनेशनल इकोसिस्टम, जो मोस्ट पावरफुल इकोसिस्टम है, उसका हिस्सा हैं, उसके पैरोल पे हैं, तो ऑब्वियसली मिलियनों बना रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, आगे भी मेरे पास बहुत स्टोरियाँ हैं। यूरोप में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अभी 2-3 लाख लोग जमा हुए हैं लंदन में सैटरडे को। मैं उस पर, और यूरोप में जो इनकी सूरत हाल है उस पर आगे आऊँगा अगले प्रोग्राम में। सिर्फ एक ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये फ़ोटो है लंदन में प्रोटेस्ट की, इसमें तालिबान के झंडे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस लड़की ने ये तालिबान का झंडा उठाया है, वो अगर यही झंडा उठा के ईरान या अफ़गानिस्तान में, तो तालिबान तो इनका क्या हाल करेंगे आपको पता ही है। कोड़े मारेंगे, पत्थर मारेंगे, हशर नशर कर देंगे। ये तालिबान का झंडा उठा के लंदन में घूम रही हैं। इनकी हिपोक्रेसी की इंतहा देखें कि इस कपड़े में इनको क्या तालिबान या ईरान एक्सेप्ट करेगा। ये है इनकी हिपोक्रेसी। जिस इस्लामिक शरिया की ये बात करते हैं, उस शरिया के हिसाब से इनकी लाइफ स्टाइल नहीं है। ये सब धंधा है, पर गंदा है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. काइंडली कीप सपोर्टिंग.